Good morning, students. We'll start with our next lecture. We'll continue with the same thing, that is pro forma of bill of exchange. Now, before going further, I will tell you till last lecture we have done already 4 sums. Which were they? First of all, we did this sum. Okay. Sum number 1. It was a simple sum with drawer, drawee, amount, period, date of the bill and etc. Okay. You might be aware how to do the sum now till now. जो बेसिक थिंग्स हैं सम करने के लिए वो आपको अब तक समझ में आ गए होंगे. मेरे हिसाब से अभी तक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, देन वी डिड दिस सेकेंड सम, this one, then we did the third one, and total 4 sum we have done. Today we'll go with the 5th one. Okay, now this 5th sum, it is regarding qualified acceptance as to the amount. अब तक हमने जितने भी sum देखे ये उनमें से थोड़ा सा difference है. What is the difference in this sum that I will explain while doing the sum? First thing is same, drawer. Okay, जितने भी sum किए हमने उसमें हमको drawer है, drawee भी है, amount is also given, period आपको मैंने last lecture में भी समझाया था, it can be written period. Second word they can use, that is term. The third word which they can use, that is tenure. The meaning remains same. Okay, date of bill and date of acceptance, already we have seen one sum. In that I have told you where to write this date of acceptance. Now what is new in this sum? Accepted for amount. इसके पहले जो हमने 4 सम किए हैं उसमें ये नहीं दिया गया था, यानी कि ये सम में ये जो है ये लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, दिस इज न्यू इन दिस सम, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट. ओके, प्रिपेयर करने का तरीका सेम है. इन द सेम वे वी विल प्रिपेयर. 2 ऑप्शंस आर देयर टू राइट बिल ऑफ एक्सचेंज, आइदर हियर or you can write inside bill of exchange, but heading has to be given. Okay, कहीं ना कहीं आपको heading देनी बहुत ज़रूरी है. So we'll write first bill of exchange, then we'll start with the sum. This side we'll prepare a small box and write stamp. Okay, यहाँ तक clear हुआ. Then we'll go for one more box, one more rectangle box, and in this we'll write the amount, and this amount you're supposed to write here. Okay, ये accepted for amount नहीं लिखना है. You are supposed to write this amount because the bill amount is 20,000. Where to write this amount I will explain you, don't take tension. We'll write here rupees 20,000 as we have written in previous 4 sums. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ. जैसे हमने पहले के 4 सम किए हैं ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, डिफरेंस नहीं है इसमें भी. देन विल गो फॉर दिस साइड, राइट हैंड साइड. आई टोल्ड यू नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, और यहाँ पर ड्रॉवर का नाम क्या दिया है? मिस्टर नरेश थाने. तो हम वही लिखेंगे, मिस्टर नरेश थाने, and below that we'll write the date. Now in this sum also 2 dates are given. In the last sum also I have explained you, when 2 dates are given it is clearly written date of the bill, यानी कि वो तारीख जिस दिन ड्रॉवर ने बिल प्रिपेयर किया था, the date on which the drawer has prepared the bill, and this is date of acceptance, the date on which the drawee has accepted the bill. तो दोनों में confusion नहीं होना चाहिए. Date of bill, the date on which the drawer has prepared the bill, and date of acceptance is the date on which the drawee has accepted the bill. पहले सम में जो पीछे हमने लास्ट लेक्चर में सम किया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ये कहाँ पर लिखना है. अगर नहीं याद में आ रहा है आपको, मैं जब सम करूँगी तभी आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ लिखना है. तो यहाँ on this place you are supposed to write the date of bill, not the date of acceptance, and the date of bill is 14th October 2015. यहाँ तक क्लियर हुआ. लेफ्ट हैंड साइड स्टैम्प, then amount, bill of exchange either here or above,
then drawer's name. What is drawer name? Mr. Naresh Thane. Okay, and then will come the date of bill. Then we'll start our contain. Now, what is the tenure given? Term given 2 months. So we'll write 2 months after the date. Pay to. Now here pay is given in the sum. Pay का नाम दिया है. What they have given? Drawer, drawee, amount, period, date of bill, acceptance and amount. Pay is not given, तो हम wording same रखेंगे. Pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received. If you have seen in the last 4 sum which we have done, something little bit changes are there, but the format remains same. Format में कुछ खास अंतर नहीं आता है. The format remains same. The stamp is same in last 4 sum also, in this one the 5th sum which we are doing. Amount यहीं पर लिखना है. Second option मैंने बताया था आपको. Here it will come to the right hand side. It will come date and address, name, address and date. Name and address of drawer, date of the bill. Clearly लिखा होगा. If they are giving 2 dates, they will write clearly. First date they will write date of the bill, and the second one date of acceptance. Acceptance का मतलब है वो तारीख जिस दिन ड्रॉई ने बिल साइन करके दिया था, एक्सेप्ट करके दिया था. यहाँ तक क्लियर हुआ. फिर हमारा मैटर कंटेन स्टार्ट हुआ. 2 month after the date, pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received. Okay, then this side आपको याद होगा किसका नाम और पता आएगा. Now the name and address of the drawee will write to. We'll see some. What is the name of the drawee? Name of the drawee is given Mr. Mahesh, Mumbai. तो हम यहीं लिखेंगे Mr. Mahesh, मुंबई. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. देन विल गो फॉर एक्सेप्टेड. सिग्नेचर. किसके सिग्नेचर आएंगे? ड्रॉई के. ड्रॉई का नाम लिखेंगे यहाँ पर महेश. नाउ डेट. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको लास्ट सम में भी एक्सप्लेन किया था. द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इफ इट इज गिवन इट शुड बी रिटन ओनली ईयर. उसके अलावा कहीं नहीं लिखना है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन 16th October 2015. एंड ये जो एक्सेप्टेड फॉर द अमाउंट है ये भी आपको यहीं पर लिखना है. ओके, एक्सेप्टेड फॉर अमाउंट ऑल्सो यू कैन राइट ईयर ओनली. यू कैन राइट आइदर ईयर. एक्सेप्टेड के साथ में लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो. फॉर अमाउंट रुपीज 15,000 ओनली. ओके, 2 ऑप्शन. आइदर यू राइट ईयर फॉर अमाउंट 15,000 ओनली, या जहां पर आपने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा है वहां पर भी लिख सकते हो एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000 ओनली. ओके, आइदर यू राइट ईयर और यू राइट ईयर. क्लियर हुआ. देन दिस साइड विल कम अगेन सिग्नेचर. एस जी का मतलब होता है सिग्नेचर. हु सिग्नेचर विल राइट नाउ? ड्रॉवर. सॉरी, ड्रॉवर इज नरेश. I explain again. What was new in the sum? Accepted for amount 15,000. ये date of acceptance already I have explained you. This is the second sum we are doing with date of acceptance. Okay. Drawer, drawee, amount, period, date of bill is given. You will get in each and every sum. इसके बिना क्वेश्चन नहीं आपको मिल सकता है. तो हर एक क्वेश्चन में आपको ड्रॉवर, ड्रॉई, अमाउंट, पीरियड और डेट ऑफ बिल तो मिलेगा. दिस इट कैन बी, इट कैनॉट बी. दैट मीन्स दिस इज नॉट कंपल्सरी.
एंड व्हेन एक्सेप्टेड अमाउंट, इसका मतलब क्या है कि भले ड्रॉवर ने 20,000 का बिल ड्रॉ करके दिया है, द ड्रॉई हैज एक्सेप्टेड द बिल फॉर ओनली 15,000. दैट मीन्स ही इज टेलिंग, दो यू हैव ड्रॉन द बिल फॉर 20,000, आई विल पे ओनली 15,000. उसके लिए एक्सेप्ट करके उसने वहां पर सिग्नेचर किए, आई एम एक्सेप्टिंग द बिल ओनली फॉर 15,000 नॉट फॉर 20,000. And this type of acceptance is called qualified acceptance as to amount. यानी कि यहाँ पर ड्रॉई अमाउंट चेंज कर रहा है. जो बिल की अमाउंट है 20,000, that he is changing while accepting the bill. Okay, then आपको पता है यहाँ स्टैम्प है, here it will come amount, name and address of drawee, date of the bill, then content of the bill of exchange, then this side drawee, this side accepted, signature Mahesh, date, amount can be written here या accepted word के साथ में लिख सकते हो, accepted for rupees 15,000 only. And this side will come the signature of drawer, and in this sum the drawer's name is Mr. Naresh. यहाँ तक clear हुआ? Next sum we will do. Now see our next sum. Now this sum, अभी तक हमने जो 5 sum किए थे, it were आपको clearly अलग अलग करके दिया था, आपको find out करने की जरूरत नहीं थी. Now this is our next type of bill, that is after sight bill. Okay, अब इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ. What is the difference between this? Now in this, ये पैराग्राफ वाइज में भी है. इसके पहले जो भी हमने सम किए उसमें दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं थी. क्लियरली इट वाज रिटन, दिस इज द ड्रॉवर नेम, दिस इज द ड्रॉई नेम, this is the name of pay, this is date of bill, this is date of acceptance, this is the amount, this is the period. But here you are supposed to read it and then understand it what is given. तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे इसको कैसे लिखना है. So we'll start reading what is given. Rupa Patel, Mumbai, drew a bill on 23rd Jan. अब ये जो रूपा पाटिल है, ड्रू का मतलब है बिल ड्रॉ कर रही है, तो दिस रूपा पाटिल शी इज अवर ड्रॉवर. यानी कि सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको समझ के लेना है कि ये कौन है. देन विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर फॉर्मेट. नाउ द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर. तो यहाँ पर जो रूपा पाटिल है वो कौन है? ड्रॉवर है. व्हेन शी इज ड्रॉइंग द बिल ऑन 23rd Jan 2017, तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ बिल. यानी कि क्वेश्चन भले पैराग्राफ में दिया है, यू आर सपोज टू रीड इट एंड देन फाइंड आउट इट. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज आर अमाउंट. ये क्या है? हमारा अमाउंट है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? द पर्सन हु ड्रॉस द बिल इज नोन एज ड्रॉवर. This is our date of bill. This is our amount. Clear till here? Then we have bill was drawn for 2 months. This is our, you can say term, you can say tenure, you can say period. After sight, ये word नया है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कहाँ पर लिखना है. ऑन शांति. तो हु इज शांति? शांति इज अवर ड्रॉई. दिस वन इज अवर ड्रॉई. पेबल टू. पेबल यानी कि पेबल किसको करना है? पे किसको करना है? लता. सो दिस वन इज आ पेई ऑफ नासिक. द बिल वॉज एक्सेप्टेड. अब एक्सेप्टेड वर्ड यूज किया है तो दिस इज आवर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. क्लियर हुआ? ध्यान से सम देखना है और समझ के लेना है. पहले भले वो पैराग्राफ में ये फर्स्ट सम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है. डोंट टेक टेंशन. रीड द सम नाइसली. सम पढ़ते ही आपको समझ में आएगा क्या करना है. रूपा पाटिल मुंबई ड्रू अ बिल. जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर है. सो यू कैन राइट अबाउट दिस इज माई ड्रॉवर्स नेम. 23rd
Jan 2017 डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑन शांति, बिल जिसके ऊपर ड्रॉ किया है वो हमारा ड्रॉई है। पेबल टू, किसको पे करना है, लता ऑफ नासिक, वो हमारा पे है। एंड दिस इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। विल स्टार्ट विद आवर बिल ऑफ एक्सचेंज, विल गिव द हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, आप बाहर भी लिख सकते हो। देन विल प्रिपेयर अ स्मॉल बॉक्स एंड राइट स्टैम्प। स्टैम्प के नीचे फिर से एक छोटा सा बॉक्स एंड विल राइट नाउ, दिस टाइम वी विल राइट अवर अमाउंट एंड अवर अमाउंट इज ₹57,450। यहाँ पर हमको नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर लिखना है और यहाँ पर ड्रॉवर का नाम क्या दिया है, रूपा पाटिल। सो विल राइट रूपा पाटिल, Mumbai, and then we'll write the date of bill, and the date of bill is 23rd Jan 2000, 23rd Jan 2017। यहाँ तक क्लियर हुआ? Then we'll start our content. Now here one word extra is after sight. कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे। कितना क्रेडिट पीरियड दिया है, 2 months, विल राइट हियर 2 months। जहां पर हम आफ्टर द डेट लिखते थे, यहां पर आफ्टर साइड बिल है तो हम लिखेंगे आफ्टर साइड पे टू। अब यहां पर पे का नाम आएगा लता नासिक। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था, अगर पे फीमेल है, व्हाट वी आर सपोज टू राइट, वी आर सपोज टू राइट हर, और हर order a sum of rupees 57,450 only for the value received. Okay, क्या न्यू था? Instead of giving information drawer, drawee, pay like this, the sum is given in paragraph. Don't take tension. टेंशन में नहीं आना है, ध्यान से सम पढ़ना है, समझ के लेना है। जहां पर ड्रॉस अ बिल, ड्रू अ बिल, वो हो गया हमारा ड्रॉवर। पहली तारीख जो सबसे पहली तारीख आती है, अभी यहाँ पर 2 डेट दिए हैं, दिस इज 23rd Jan, दिस इज 27। जो फर्स्ट डेट होगी दैट विल बी द डेट ऑफ बिल। द सेकेंड वन, इट इज क्लियरली रिटन द बिल वॉज एक्सेप्टेड, सो दिस इज आवर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, बिल जिसके ऊपर ड्रॉ किया है ऑन शांति, ड्रॉइंग। पेबल टू, किसको पे करना है, लता, पे। 2 months, term of the bill, period of the bill, amount, what was new, after sight। जहां पर हम लिखते हैं 2 months after the date, instead of date, when it is after sight bill you will write 2 months after sight, remaining is same। pay to लता नासिक और her order, फीमेल है, हर है, मेल होगा, यू विल राइट द वर्ड हिज ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज 57,450 only for the value received। this side will come the name and address of the drawee, और यहाँ पर ड्रॉई का नाम क्या दिया है, ड्रॉई का नाम दिया है शांति पुणे। सो विल राइट शांति पुणे accepted, signature Shanti, and then we'll write the date of acceptance, that is 27th January 2017,
and here again the signature of the drawing, that is Rupa. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया? टेंशन नहीं लेना है, go through the sum. If you have any doubt you can ask me, but go through the lecture at least 1 or 2 time nicely. अच्छे से देखो, पढ़ के लो, समझ के लो, सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके, हैव अ गुड डे. थैंक यू.